Project management terminologies that we'll be using throughout the course of our training session. इनको आज डिस्कस करना ज़रूरी है इसलिए कि फिर जैसे जैसे ये आएंगी I'll just refer it to them. तो जैसे मैं इसका नाम लूँगा तो you will have to connect back कि क्या बात डिस्कस हुई थी. तो अभी भी जितनी डिस्कशंस हैं अभी कर लेंगे, जितनी कन्फ्यूजन है वो आज ही क्लियर कर लेंगे. और बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपने सुनी होंगी, आप यूज़ करते हुए आए होंगे, लेकिन थोड़ी सी मिसअलाइंड होंगी, ठीक है. और कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में इट्स डिफरेंट, बट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट मीन्स लिटिल डिफरेंट. तो उनको थोड़ा सा ग्रास्प करने की ज़रूरत है. तो दिस इज़ व्हाट विल बी डिस्कसिंग टुडे. फर्स्ट term is, what do you guys think what is a project manager? आपको प्रोजेक्ट की डेफिनेशन भी पता चल गई, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी पता चल गई. अब मुझे बताएं what a project manager role और as a person is. क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, बताएं ज़रा मुझे. The key deliver the project. Who is responsible To deliver the project. Good. हाँ जी. Project according to the requirement. According to the requirements, अगर वो उसको complete करता है within the resources, within the resources तो given time. given time. और The key person who takes the project from beginning till its end through set rules is known as. और yeah, if I ask you what type of skills should a project manager possess, what will gonna be your answer? How would you define a role of a project manager? What he or she does? A person responsible to take the project entire cycle successfully through, who knows when to start a project, how to initiate it, how to get requirements, how to mitigate the risks, how to manage the time, the resources और जी and the cost. आप कुछ बताएं जी. Share your thoughts. I think the chief, The boss. Good. who sets the direction. I mean, you know क्या आपने वो Good. Good. It's a nice thought. कौन सा article है तो कौन सा organization manager आपको. Very good. So the first thought that we receive from the audience is the person who is responsible for the project. The project manager is a guy who is responsible for the project, completely responsible for the project, who is responsible for delivering success of the project and responsible for taking the responsibility of failure as well. ठीक है. तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको कहा जाता है जो सक्सेस लोगों को एट्रीब्यूट कर दे और फेलियर अपने ज़िम्मे ले ले. ठीक है. प्रोजेक्ट मैनेजर must have leadership skills, must have team building skills, must have motivational skills. अपने लोगों को मोटिवेट करना उसको आना चाहिए. कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए. इंग्लिश है तो इंग्लिश, उर्दू है तो उर्दू, अरेबिक है तो अरेबिक, व्हाटएवर. वो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, वो अपनी टीम को इन्फ्लुएंस कर सके. उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर्स होनी चाहिए. पॉलिटिकल एंड कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए. जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी में वो काम कर रहा है. एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, यहाँ से ईरान जाता है, ही हैज़ टू बी कल्चरली अवेयर ऑफ ईरान. 6 महीने बाद सऊदी अरब चला जाता है, ही हैज़ टू बी अवेयर ऑफ दैट कल्चर. He cannot behave same in Pakistan and Iran and Saudi Arabia at the same time and in America at the same time, right? So he must be politically and culturally aware. It's a part of the job, it's part of the deal.
नेगोशिएशन उसको आनी चाहिए, हर तरह की नेगोशिएशन, पैसों की, टाइम की, लोगों की कमिटमेंट की, ट्रस्ट बिल्डिंग, people can trust him or her being a project manager, and he or she can trust his team as a project. तो trust building का एक जो element है that is very important. Conflict management, जब बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो उनमें conflict आता है, एक दूसरे से disagreement पैदा होता है, तो conflict management की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे. ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल का हिस्सा है. कोचिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को सिखाना, जनरल एथिक्स को सिखाना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को सिखाना, ये सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बीइंग अ कोच काम है. ट्रेनिंग्स देना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर. तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ये बहुत सारे स्किल्स लाजमी होने चाहिए, इसमें से कोई भी ऑप्शनल नहीं है. इफ यू वांट टू बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, you got to create all of these skills in one way or the other with the passage of time in you. जहाँ आप किसी स्किल में मार खाएंगे वहाँ आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मार खाते चले जाएंगे. राइट? स्टेक होल्डर, हैव यू एवर heard about this word? Yes. You must have heard about this word. So what's the stakeholder? Who has somehow influence on the project, who has his interest. अच्छा. concerned people. Might be- ठीक है. और A person or an organization directly affected through the success or the failure of the project. गुड. और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. और आपका नाम क्या था? सना. हाँ जी, सुना है कभी ये नाम वर्ड? पता है स्टेक क्या होता है? खाने वाला. किसी तरह से इंटरेस्ट आपका इन्वॉल्व हो, फाइनेंशियल या कोई हिस्सा. ठीक है. तो होल्डर. जिसका कोई हिस्सा होगा. अच्छा. शराकतदार. स्टेक होल्डर कहते हैं जी अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस हु अफेक्ट्स, बी अफेक्टेड बाय or perceives themselves to be affected by the project or output of a project is called a stakeholder. अगर ये बाहर सड़क बन रही है, इसका प्रोजेक्ट है, तो वो लोग जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं. जो लोग इसके ऊपर ट्रैवल करेंगे या इसके तोड़ने की वजह से वो अफेक्ट हो रहे हैं या जब ये बनेगी तब अफेक्ट होंगे, वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं. जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि 10 फुट की नहीं 20 फुट की सड़क होनी चाहिए, 20 की नहीं 30 फुट की, वो भी स्टेक होल्डर. जो उसको अफेक्ट करें या इवेंचुअली आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो उससे अफेक्ट हो जाएं, या कोई चौथी गली में बैठा हुआ बंदा घर बैठ के सोच ले कि यार मैं भी इससे अफेक्ट होऊंगा, हालांकि वो आता जाता किसी और सड़क से, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहती है कि वो भी आपका स्टेक होल्डर है. ठीक है. तो जितने काम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के आगे आएंगे तो वो चौथे महल्ले वाले के लिए भी एप्लीकेबल होंगे. सही है. वजह क्या है वो हम बाद में देखेंगे किसी ज़माने में. सो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु अफेक्ट द प्रोजेक्ट, बी अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट और परसीव देमसेल्फ टू बी अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट और एनी आउटपुट और एन एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर. मेक सेंस? कस्टमर कौन होता है जी? Who is paying for the project? वेरी गुड. Internal and external, both customers. अच्छा. और जी benefit of the project. और बेनिफिट तो देखना, ये सड़क बनी है, इससे बेनिफिट आपको है, आप गाड़ी चलाते हैं इस पर, ऑफिस आते जाते हैं, तो क्या आप भी कस्टमर हैं? जो सर्विसेज यूज कर रहे हो, जो related होता है project जिसको प्रोजेक्ट की नीड है, आपकी नीड है ना, सड़क बननी चाहिए, तो क्या आप कस्टमर हैं? I think the one who actually pays for the someone who service. is paying for it. That's an external Financial customer. इसमें transaction. तो इंटरनल फिर क्या हुआ? Internal is the project stakeholders, basically those guys who are directly contributing with the project in some ways, basically. असल में पहले मैं आपसे सुन के ना आपके गलत आइडियाज़ लेकर फिर उसके ऊपर जब वो उसको अलाइन करता हूँ ना, तो दिस इज़ वाई आई टेक ऑल ऑफ योर फीडबैक. कुछ की ठीक भी होती है,
हु विल पे, and who will use. हु विल यूज। कस्टमर कौन है इस बाहर रोड का? CDA. CDA, they're paying for this project, right? And they're going to use it for their purpose. वो खुद यूज करें या आवाम को दे दें जी आप यूज करें, इट इज़ देयर प्रॉपर्टी, राइट? वो जब चाहें इसको ब्लॉक कर सकते हैं, वो जब चाहें आपको दे सकते हैं। सो दे हैव पेड फॉर इट, दे विल यूज इट और दे कैन गिव समवन एल्स टू यूज इट, दैट इज फाइन एज वेल। दैट इज कॉल्ड कस्टमर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टर्म। स्पॉन्सर, The person or organization that directly invests अच्छा in the project. Providing funds for the project. हाँ जी, और बाय द वे इट्स नॉट अ फाइनेंशियल स्पॉन्सर। किसी भी तरह से इन्वेस्ट करें, टाइम इन्वेस्ट करना। अच्छा, और the person or the department or the authority who approves the resources for the project is called project sponsor, which is accountable for the project. तो project manager के लिए क्या word use किया था? Responsible. Responsible. Sponsor is accountable. तो accountable होने में और responsible होने में क्या फ़र्क है? सक्सेस और फेलियर की जो डायरेक्टली कोई मतलब जिम्मेदारी लेता है, who is that is responsible, और अकाउंटेबल कि क्यों हो गए सक्सेस, क्यों नहीं हुई सक्सेस जो है, क्यों कर वो जाने वाला है? और शाबाश, अकाउंटेबल में क्या फ़र्क है और रिस्पॉन्सिबल में क्या फ़र्क है? अकाउंटेबल मींस रिक्वायरमेंट इसी बंदे ने दी थी और इसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रोजेक्ट बना है या नहीं बना, उसके अकाउंटेबिलिटी इसके ऊपर आ रही है क्योंकि इसी ने रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो रिस्पॉन्सिबल, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर नहीं बना तो रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर बना भी है या नहीं बना लेकिन वो चीज़ उससे वो आउटपुट नहीं आ रही, इट मींस ही इज अकाउंटेबल फॉर दैट बिकॉज़ हिज रिक्वायरमेंट वाज रॉन्ग। समझ आइए? नहीं आई, इनको भी नहीं आई, मुझे क्या आनी है। ऑलराइट, सो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल में ये फ़र्क है। अगर ये रोड बनी है, इसका कस्टमर CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दैट अप्रूव्स रिसोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट, मुझे पैसे चाहिए बनाने के लिए 10 लाख रुपया। अब मिसाल 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, मुझे 10-10 लाख रुपया मिलेगा, तो मुझे 10 लाख रुपया आज का चाहिए, तो मैं CDA में किसके पास जाऊंगा? दफ्तर जाके बैठ जाऊँ, 10 लाख रुपए दे दो, कौन देगा? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, दे मस्ट हैव अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एलोकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलोकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसको चीफ इंजीनियर कहते हैं। एक्सीएन का कभी नाम सुना होगा, बिल के पीछे नहीं, वो एक्सीएन इलेक्ट्रिसिटी आ रहा होता है, ठीक है? उनके अपने जो रोल्स हैं, एग्जेक्टिव इंजीनियर है या चीफ इंजीनियर है या ओवरसीयर है या इस तरह की उनकी जो जॉब्स हैं। सो दोज गाइज आर योर स्पॉन्सर। उनका ये काम है कि वो आपके प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज अप्रूव करवाते हैं और रिसोर्सेज आपको डिलीवर करते हैं। आपको कोई मशीनरी चाहिए, आप CDA में जाके किसको बोलेंगे? ऑफ कोर्स देयर विल बी गाय, देयर विल बी अ डिपार्टमेंट जहाँ आप जाकेंगे, यार मेरी इस वाली रोड के लिए मुझे ये मशीनरी और इतने पैसे दे दें, they're going to deliver it to you. That guy or that department is your sponsor and that is basically accountable. Accountable और responsible में अब क्या फ़र्क है? अगर ये प्रोजेक्ट फेलियर हो जाता है, इसमें करप्शन होती है, इसमें इन्वेस्टिगेशन लगती है, कोर्ट में मामला जाता है, so who will going to be called in the court in the first place? Accountable सबसे पहले गवर्नमेंट के उस इंडिविजुअल को बुलाएंगे, स्पॉन्सर को। हाँ भाई, दैट वाज योर बेबी, व्हाट हैपेंड टू इट? वो कहेगा सर मैंने तो ठीक किया है, प्रोजेक्ट मैनेजर पैसे खा गया। सो दे विल गोना कॉल रिस्पॉन्सिबल गाय इन द सेकंड प्लेस। सो अकाउंटेबल इज द गाय हु इज क्वेश्चनेबल ऑफिशियली। सही है? तो जब ये अखबारों में या न्यूज़ में सुनते हैं वो ठेके में वो फलाना खा गया, तो सबसे पहले किसकी पकड़ होती है? ठेकेदार की? नो, सबसे पहले उस इंडिविजुअल गवर्नमेंट की या उस मिनिस्टर की या वट एवर दैट गाय इज, उसकी होती है, जिसको पकड़ते हैं। मेट्रो के ऊपर शोर मच रहा है, अगर
तो किसी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को पूछा कि पैसे कहाँ गए? नो, दे आर आस्किंग अबाउट दोज इंडिविजुअल्स हु आर इन चार्ज, राइट? सो स्पॉन्सर इज द गाय हु अप्रूव्स रिसोर्सेज फॉर यू. बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको पैसे चाहिए, आपको मशीन, कोई और चीज़ चाहिए, यू विल गो टू दैट गाय and who will gonna be eventually accountable, and being a project manager you will be responsible. गुड हो गया? तो ये रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन भी यहीं से, इसी के थ्रू ही आएंगी, काफ़ी सारी नहीं. व्हाट इज एन एंड यूजर? प्रोडक्ट यूज करेगा. Who actually uses the product of the project? मैं और आप, who will gonna travel on this road, ठीक है, वी आर द एंड यूजर्स ऑफ दिस. कोई वेबसाइट बनती है, उसको जो यूज़ करेंगे वो वाले लोग, वो उसके एंड यूज़र कहलाते हैं.